18th February, the day we were waiting for, is arrived, and we were looking forward to this day. D-Day has finally come. IPL auction it is, live from Chennai, and me along with Yuvraj, we will be discussing each and everything related to it. 292 players will be going under the hammer. 61 players maximum can be sold in this three and a half hour show. Yuvraj, big day for so many players. I don't know where to start, but I think this is one to watch for each and every player, be it Harbhajan Singh or be it the newbie like Shah Rukh Khan. Absolutely. I think there's a 40-year-old Harbhajan Singh in the auction, and there's a 16-year-old Noor Ahmed from Afghanistan. So it's going to be really exciting. Players from all ages, players from all ranges, from all around the world going under the hammer in one auction. It's so exciting to watch. I don't think there is any league around the world where there's so much diversity. Whether it's CPL, whether it's BBL, whether it's Vitality Blast, Ram Slam, any T20 leagues you pick up, you won't see this kind of diversity. So many players from around the world playing at one place, coming together to compete against each other. Again, as I mentioned, 16-year-old players, 42, 43, 45-year-old players playing in the same league. How do you describe that? It's so unbelievable to watch. IPL over the years, from the day it started in 2008, has produced so many legends, has produced so many stars, and as it says, it not just brings you one step closer to Indian selection. Many players around the world have also made comebacks in their respective national teams. So I think it's going to be really exciting again. So many players have the opportunity to resurrect their careers, start their careers, prolong their careers, everything under one table. Well, absolutely. Dreams will turn into reality, and this is the stage. If you prove yourself in IPL, then the doors for international cricket actually opens. युवराज, सबसे पहले चालू करेंगे आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज से, जो है पंजाब किंग्स 11 पंजाब आप अभी तक बोल रहे थे, पर अब हो गए हैं पंजाब किंग्स. पंजाब के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा और ऑन योर स्क्रीन भी दिखाना चाहूंगा, जितने भी हमारे यूजर हैं उनको पता चले. केएल राहुल हैं कप्तान. लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किया, अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फोर में नहीं आ पाए. क्या लग रहा है इस साल किन प्लेयर से फोकस रखना चाहेंगे कि अगर ये आ जाते हैं स्क्वाड में तो जो कमी रह रही थी शायद उसको पूरा करके शायद टॉप फोर में आ जाएंगे? जी, सबसे पहले हम देखते हैं उनकी कमियां कहाँ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप्स कहाँ है साइड में. एक आई थिंक जो उन्होंने दो प्लेयर्स रिलीज किए, शेल्डन कोटरेल एंड मुजीबुर रहमान. They have released an overseas off spinner. Now they don't have any off spinner in their side. They have a left arm orthodox, which is Harpreet Brar, but they will need a specialist off spinner. They need one, whether it's Harbhajan Singh, and if they get an Indian, that will be a plus point for them. And I think Harbhajan is the perfect pick for them. So off spin department will be one gap they'll want to plug. Middle order problems have always persisted for them. So to cover that, maybe they wouldn't be looking for anyone who plays at number 3 or number 4, because they already have players. So I don't think they will be eyeing David Malan. They'll need other players in their middle order. Maybe an all-rounder like Moeen Ali, who can play at 6 or 7 and can score some heavy runs, and similarly Chris Morris. I think RCB will be looking to rebuy Chris Morris, and I think it will be a fight between Punjab Kings. Now the names change. We've got to get used to it. I think they'll be looking for a solid middle order batsman. Their strength has been their top order always, from the times of Gilchrist to the times of Chris Gale, KL Rahul, and Mayank Agarwal. Their strength is their top order. They crumble below that. सरफराज खान they've tried, मनदीप सिंह they've tried. इसके अलावा उन्होंने करुण नायर ट्राई किया है, जिमी नीशम पिछले साल काम नहीं आए. तो इस बार उनको मिडिल ऑर्डर का गैप जो है वो प्लग करना होगा. नीचे एक पिंच हिटर चाहिए, और वो शायद मोइन अली या क्रिस मॉरिस हो सकते हैं. सो दीज आर 2-3 डिपार्टमेंट्स दैट किंग्स 11 पंजाब किंग्स वुड लाइक टू कवर. युवराज, आपने पंजाब की बात करी और एक पंजाब के यहां से ही मैं बात करना चाहूंगा. करुण नायर खेले थे पिछले साल, इस साल उनको रिलीज करा था. पहला नाम उनका गया बिड के अंदर और जा चुके हैं अनसोल्ड. कोई भी टीम ने उन पे बिड नहीं लगाया है, थप्पा नहीं लगाया है. क्या लग रहा है, मतलब 300 रन मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए, फिर शायद अपनी स्टेट टीम के लिए ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, उस वजह से शायद आईपीएल के अंदर मौका नहीं मिल रहा. पूरी तरीके से अब हो चुके हैं बाहर, कहीं मौका नहीं मिल रहा है, अनसोल्ड हो गए हैं 2021 के इंडियन टी20 लीग ऑक्शन से. समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि उसके बाद दो प्लेयर्स और आ चुके हैं, एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय, और वो दोनों भी अनसोल्ड.
मतलब क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क। युवराज, गलती कहाँ हो रही है? मतलब इनको लेना ही नहीं था, या फिर शायद इस साल नहीं लेना चाहते थे? जी, करुण नायर की अगर हम बात करें तो निराशाजनक बात थोड़ी, बट जैसे टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट स्पेशलिस्ट फॉर्मेट्स बन चुके हैं, वैसे ही T20 क्रिकेट भी स्पेशलिस्ट फॉर्मेट बन चुका है, तो आपको स्पेशलिस्ट होना जरूरी इस फॉर्मेट का। एंड आई थिंक करुण नायर की बल्लेबाजी में वो नहीं दिखाया कभी। जैसे सूर्य कुमार यादव ने अपनी गेम डेवलप करी है, मोर प्लेयर्स, ऐसे और प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, जिन्होंने T20 के हिसाब से, हर फॉर्मेट के हिसाब से अपनी गेम अलग से डेवलप कर रखी है। एंड आई थिंक करुण नायर प्लेज द सेम इन ऑल फॉर्मेट्स। दैट इज द प्रॉब्लम, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर करुण नायर हैज लैग्ड। And after that, as you mentioned about Jason Roy and Alex Hales, एलेक्स uh, सेल्स। I don't understand why they've not been so. Absolutely, because Alex Hales has performed so well in Big Bash League. He's doing so well for all the franchises he's playing. He is somebody who will be available throughout the season because he is not a part of the England cricket season as well. Why the boards are not picking, I am not understanding. Why people are just going by the name that, okay, Steve Smith, because Steve Smith is currently out there and people are bidding. People are bidding, franchises are bidding, RCB has opened, and that 2 crore price has moved up to 220. So, Yuvraj, I'm not understanding the fact. Are we going with the mindset of T20 cricket, or we are going with the mindset of only that somebody who is renowned in the international cricket should be picked? Absolutely, Alex Hales, top scorer in BBL. Why wouldn't you pick him? Why wouldn't you pick him? I think Alex Hales is a much better T20 player than a lot of people, let alone Steve Smith. And I really don't understand why they wouldn't pick someone destructive like Alex Hales. I understand Jason Roy has not been that consistent, but on the other hand, Alex Hales has always been so consistent, except in the IPL. So I feel Alex Hales not going in the auction. I think he will come back again जब दोबारा जब अनसोल्ड प्लेयर्स आएंगे, तब शायद लोअर प्राइस पे बिक जाए, बट पहली बारी में अनसोल्ड जाना, इट्स अ बिट सरप्राइजिंग आई थिंक। बिट सरप्राइजिंग। और स्टीव स्मिथ हो चुके हैं सोल्ड, दिल्ली को ज्वाइन करेंगे। मतलब दिल्ली की तो मुझे लगता है ऐसी टीम होने वाली है कि आप उनको हरा ही नहीं पाएंगे। मतलब एक से एक धुरंधर उनके पास आ चुके हैं। आपके पास जगह कहाँ है युवराज? मैं आपसे वो जानना चाहूंगा। ले तो लिया आपने, पर पहले 6 में खिलाएंगे कहाँ पे? शायद आपने टीम को गाइड करने के लिए खरीद लिया स्टीव स्मिथ। आप जरा बाहर से गाइड करें। आप अपनी कैप्टनसी तो खो चुके हैं नेशन की। आप अच्छा, जरा एक चीज और भी। आप पिछली बार भी ऑक्शन के अंदर अजिंक्य रहाणे को रिलीज करा राजस्थान ने, उनने ज्वाइन करा दिल्ली। वो थे लास्ट टाइम कप्तान। स्टीव स्मिथ के साथ भी सेम, राजस्थान के थे कप्तान, उनने करा रिलीज, डीसी ने ले लिया। ये कैसा ट्रेंड चल रहा है? maybe Delhi has a liking for players released by Rajasthan, if that is the case. But I don't think that would be the case. Steve Smith going to Delhi is a bit surprising. I thought Delhi would be a team which would not be that active at the auctions, but we're already seeing they've already bought a player. I don't understand the strategy yet, but of course management के दिमाग में कुछ तो spark हुआ होगा कि स्टीव स्मिथ हमें चाहिए. He is not that great a T20 player, so I thought he'll go unsold this time around. But again, Alex Hales not getting sold, Steve Smith getting sold is just out of my mind. I can't say anything about that. And I will surprise you a little more because even Lewis is unsold. Malab, it's a big question mark as whether you are looking for players who can perform really well, or you are looking for players who are just renowned in the international cricket. Because the next name comes Aaron Finch, and now there was some sense of anticipation behind it because Aaron Finch has also got unsold after his forgettable performance for his Melbourne Renegades and of course the team he was playing, Bangalore. तो ये शायद एक अच्छा डिसीजन। पर अगर दूसरी तरफ अगर युवराज बात करी जाए कि पूरे सेट 1 में से सिर्फ एक खिलाड़ी अभी तक सोल्ड आउट हुआ है और उनका नाम है स्टीव स्मिथ। हनुमा विहारी है आखिरी इस लिस्ट के अंदर जिन पे बिडिंग होगी या नहीं होगी, उसको देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा। आई थिंक इनका बेस प्राइस काफी ज्यादा, 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस। आई थिंक इज अ लिटिल ओवर एम्बिशियस, थोड़ा नीचे रख सकते थे। आई थिंक प्रॉब्ली इनकी जिस हिसाब से गेम है, हिज बेस प्राइस शुड हैव बीन अराउंड 20-50 lakhs, बट आई थिंक 1 करोड़ इज अ लॉट। दिल्ली ने खरीदा था, बट एक ही सीजन के बाद रिलीज कर दिया था। आई डोंट सी हनुमा विहारी गेटिंग सोल्ड आउट, बट आई थिंक वन प्लेयर जस्ट बीइंग सोल्ड आउट फ्रॉम सच अ ग्रेट सेट ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग जेसन रॉय एंड एलेक्स हेल्स। दोस टू ओपनर्स की तो कमी रहती है हर टीम में इतनी, फिर भी एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर को नहीं खरीदा। But let's see what kind of strategies the team are going forward with. We'll have to wait and watch. अपने combinations के हिसाब से pick करेंगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
युवराज वैसे बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो सेट 1 में प्लेयर्स कौन से थे? एरॉन फिंच, एलेक्स हेल्स, इवन लुइस, करुण नायर, जेसन रॉय, स्टीव स्मिथ और हनुमा विहारी। अब अगर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं सरप्राइजिंग मेरे लिए स्टीव स्मिथ भी है और सरप्राइजिंग मेरे लिए एलेक्स हेल्स भी है, पर उसके अलावा इतना द सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि स्लॉट 61 ही है। तो आप जी खिलाएंगे तो खिलाएंगे कहां? जी बिल्कुल, स्लॉट्स बहुत कम है, तो एक सेट में अगर एक भी प्लेयर जा रहा है तो आई थिंक दैट्स नॉट सरप्राइजिंग। 61 स्लॉट्स ओनली आउट ऑफ 298 प्लेयर्स, सो आई थिंक come this is why we are calling it the mini auction, and I think one player everyone had their eyes on is in the auction right now. Let's see, this will be very interesting कि आईपीएल में परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन आईपीएल से पहले परफॉर्म कर देते हैं, लालच दे देते हैं, इंसेंटिव दे देते हैं। लेट्स सी हाउ दिस गोज। अभी तक तो कोई हाथ नहीं उठ रहा है, देखने में काफी इंटरेस्ट हुआ कि ग्लेन मैक्सवेल को ले पाते या नहीं ले पाते। खबर ये आ रही थी ऑक्शन से पहले, आपको बता देते हैं कि बैंगलोर इनके लिए जाएगी, जाती है या नहीं जाती उसको देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा। और देखिए बिक चुके हैं, 2 करोड़ 40 लाख के अंदर कोलकाता को ज्वाइन करेंगे। गजब स्क्वाड होने वाला है इनका, पिटाई होगी तो भयंकर पिटाई होगी। आप ये देखिए आंद्रे रसल इनके पास हैं, ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चल गया तो इतनी पिटाई होगी, और उसके बाद ओवेन मॉर्गन। आप 3 प्लेयर आपके पास ऐसे हो जाएंगे, जब आप अगर पिटाई करने पे आएंगे तो आपको शायद फर्स्ट 3 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर ये काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं युवराज। जी बिल्कुल, आई थिंक कि कोलकाता को भी जरूरत नहीं थी, तो अभी तक ऐसी टीम्स एक्टिव रही हैं जिन्हें ज्यादा जरूरत नहीं थी। पिछली बार अगर इफ यू रिमेंबर वेदांत, इनके मिडिल ऑर्डर में इतनी भीड़ हो गई थी, दिनेश कार्तिक का समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ खेलना है। आपके पास ओवेन मॉर्गन, आंद्रे रसल, सुनील नारायण को भी मिडिल ऑर्डर में आप खिलाना चाहते थे। आई थिंक व्हाट दे आर लुकिंग एट इज, जहां जहां सुनील नारायण खेल रहे थे नंबर 4 नंबर 5 पे, उनकी जगह ग्लेन मैक्सवेल को लाना चाहते हैं। Sunil Narayan might be rested for some games, and Glenn Maxwell might get a go. That's what I think, because गेंदबाजी में आप सुनील नारायण से इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बल्लेबाजी में इनकी फॉर्म जबरदस्त। सो आई थिंक दे विल बी लुकिंग टू ट्राई हिम आउट इन दिस सीजन, जो भी टीम खरीदती है। एंड आई थिंक मैक्सवेल वुड बी डिलाइटेड अगेन, क्योंकि बिड्स फिर से ऊपर ही ऊपर जाती जा रही हैं। मैक्सवेल भी सोचते होंगे मेरा लक क्या लाजवाब है, पहले सीजन में ही इतने जबरदस्त बिके थे, और अब आई थिंक विल बी रियली हैप्पी। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आखिरी मिनट जब सोल्ड होने वाले थे उससे पहले बिड और ऊंची निकल गई है। 4 करोड़ 40 लाख पे आ चुके हैं, और 2 टीमें बिल्कुल चल रही हैं कि मैं खरीदूंगा या मैं खरीदूंगा। अच्छा, बैंगलोर जिनके हिसाब से हो रहा था कि शायद वो खरीदेंगे, वही लाइमलाइट में भी चल रहे हैं, और उनके साथ में है कोलकाता। 4 करोड़ 60 लाख पे आ चुके हैं, 4 करोड़ 80 लाख कर दीजिए उसको आप, और ये जो बिड है वो बढ़ती जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स भी आ चुकी है, 5 करोड़ पे इनका प्राइस पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है कि ये तो काफी ऊपर निकलने वाले हैं। 8 करोड़ की उम्मीद थी, 5 करोड़ पे आ चुके हैं। 5 करोड़ 25 लाख। आप ये देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस के बावजूद अगर इतने मिल रहे हैं तो एलेक्स सेल्स के लिए तो टिश्यू पेपर भेज दीजिए अभी से। जी बिल्कुल, आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल अगेन परफॉर्म्ड बिफोर द आईपीएल, पूरे टाइम ही परफॉर्म करते रहे, बस आईपीएल के वक्त इनका बल्ला शांत था। आई थिंक चेन्नई शुड गो फॉर हिम, क्योंकि चेन्नई को इंटेंट की जरूरत है मोर देन एनीथिंग, और इनसे ज्यादा इंटेंट आई थिंक दुनिया में किसी खिलाड़ी में है नहीं, जो पहली गेंद से बल्ला चला सकते हैं, रिवर्स भी मार सकते हैं। आप पिछली बार देखें, एमएस धोनी का इंटेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है बल्लेबाजी में। केदार जाधव, Faf du Plessis is also aging. Shane Watson is retired. They need players, and I think Maxwell would be a perfect fit for them. They should go 6 करोड़ से ऊपर जाती जा रही है bids. 6 करोड़ पर 6 करोड़ 25 लाख पे आ चुके हैं, और दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज इफ चेन्नई इज गोइंग फॉर हिम, how much money do they have? They have just 19.9 CR in the bag. And if they have already spent what 6.25 lakhs on a player, 625 lakhs rather on a player, then the amount actually comes down to near 10 crores, and you still have to build a team. So that's a big question mark. Royal Challengers Bangalore, every time they do the same mistakes, they are doing it again. 6 करोड़ 75 लाख पे पहुंच चुके हैं, और ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 करोड़ से इनकी बेस प्राइस चालू हुई थी। एक बार ये लग रहा था कि शायद ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, पर वो कर करके 7 करोड़ पे आ चुकी है, और लग रहा था मिनी ऑक्शन है, पर शायद मिनी ऑक्शन इनके लिए काफी हैपनिंग होने वाला है। मेगा ऑक्शन इनके लिए तो बनने वाला है युवराज।
मतलब इतने अच्छे खिलाड़ी, क्वेश्चन मार्क आ रहा है मेरे को। जी, mini auction but big money. That's what I can say. Mini auction, big money. 7 crores already. Glenn Maxwell would be finding himself really lucky right now. But the right teams are bidding for him actually. चेन्नई की अगर हम बात करें, उनके पास इंटेंट की कमी, बैंगलोर के पास तो बल्लेबाज है ही नहीं, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, एबी डिविलियर्स के अलावा यू डोंट रियली हैव बैट्समैन इन योर साइड. ग्लेन मैक्सवेल वुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर दीज टू टीम्स आई थिंक, क्योंकि अब आपके पास उथप्पा है, उनको आप कहाँ खिलाएंगे, अंबती रायडू को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहेंगे, एंड ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक नंबर 4 बैट्समैन फॉर देम would be perfect, number 4 or number 5. So Chennai, I don't know when will they stop, because with just 19 crores they shouldn't probably go above 8 crore. उसके ऊपर अगर जाते हैं तो बहुत It's ज्यादा. 9 already. It's 9 crores already, and the bid is still going on. It started from 2 crores, then it moved to 220, 240, 260, 280, and it seems to be increasing. There have been some talks going around. Mike Hessen telling the management that they should be going for him, and 9 crore 25 lakhs is the amount right now for Glenn Maxwell. A lot of thoughts going around in Chennai camp as well. They are discussing, Lakshmipati Balaji is also discussing 9 crore 50 lakhs for Glenn Maxwell as of now. And the side moves to Bangalore again. Will they be buying Maxwell? That's the big question. They are going again. It's 9 crore 75 lakhs. Now, if 25 lakhs also come into the picture, it will be in double digits. 10 crore में बिकेंगे मुझे लगता है, और टॉक्स पूरी जा रही है कि शायद 25 लाख और लगाए जा सकते हैं. मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन से गाने पे आज ये नाचने वाले हैं घर पे, क्योंकि 9 करोड़ 75 लाख उनने उम्मीद भी नहीं करी होगी. 10 करोड़ कर दीजिए युवराज, इसको 10 करोड़ कर दीजिए. पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या मतलब क्या है ये, इसके पीछे रीजन, क्योंकि अब तो मेरे ऊपर से जा रही हैं चीजें कि 10 करोड़ तक ये कैसे पहुंच सकते. जी, प्लेयर्स अगेन T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को पसंद करते हैं आप, जब इस फॉर्मेट में खिला रहे हैं आप, एंड ग्लेन मैक्सवेल इज वन ऑफ देम. ऑलमोस्ट ऑल ईयर ही प्लेज T20s, जहां भी रहते हैं. टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने खुद बयान दिया था कि टेस्ट क्रिकेट में लगता है मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा. सो आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल अगेन is a destructive player from ball one, and that's why Chennai are so interested. इस बार ऑक्शन में भी इंटेंट दिख रहा है चेन्नई की टीम में. सो आई थिंक दिस टाइम एमएस धोनी इज गोइंग टू लीड इन अ डिफरेंट वे. ही इज गोइंग टू शो इंटेंट हिमसेल्फ, और बाकी प्लेयर्स भी. ही इज गोइंग टू एग हिज प्लेयर्स ऑन टू शो इंटेंट इन द आईपीएल एज वेल. अब देखें आप, मैक्सवेल जो एनर्जी लाएंगे टीम में, वो मेरे हिसाब से उथप्पा, राइडू, रैना जैसे प्लेयर्स से ज्यादा हो सकती है, बिकॉज मैक्सवेल इज द मोस्ट चर्पी गाय ऑन फील्ड, द मोस्ट एनर्जेटिक गाय ऑन फील्ड. मैक्सवेल will be a really good pick, I think, for Chennai in particular and also Bangalore. जब तक ये बिडिंग चलती हुई, क्योंकि बिडिंग तो 10 के बाद 10-25, 10-50, 10-75 और अब 11 करोड़ 25 लाख पहुंच गई है, तो उसको चलने देते हैं. मैं बात करना चाहूंगा मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज इन इंडियन T20 लीग ऑक्शन दस बार. 2008 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी थे, फिर गाड़ी थोड़ी आगे मूव हुई, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन बिके थे, उसके बाद शेन बॉन्ड, उसके बाद गौतम गंभीर, रविंद्र जडेजा, पर 2013 के अंदर 1 मिलियन में बिके थे ग्लेन मैक्सवेल. मतलब उससे ज्यादा प्राइस अब निकल चुका है, तो मतलब अपने आप को भी बीट कर चुके हैं. काफी इंटरेस्ट होगा देखने में, क्योंकि युवराज सिंह ने 2 साल 14 करोड़ 16 करोड़ में बिके. उसके बाद शेन वॉटसन 9 करोड़ 50 लाख के अंदर. बेन स्टोक्स ने रूल करा 2 साल, 14 करोड़ 50 लाख, 12 करोड़ 50 लाख. जयदेव उनटकट 8 करोड़ 40 लाख 2019 के ऑक्शन में, और 2020 में पैट कमिंस बिके थे 15 करोड़ 50 लाख के अंदर, और इनका जो प्राइस है वो 12 करोड़ पहुंचने वाला है. 11 करोड़ 75 लाख पहुंच चुका है. आपको बता देते हैं कि बैलेंस कितना है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास में जो बैलेंस है वो है 35 करोड़ 40 लाख का. और जहां तक बात करी जाए चेन्नई की, तो उनके पास है 19 करोड़ 90 लाख. आप ये देखिए कि समझ में मेरे को बिल्कुल परे है. 12 करोड़ पहुंच चुके हैं. बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हैं. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एटलीस्ट अगर बिड कर रहे होते पंजाब और दूसरी तरफ बैंगलोर तो समझ में आता, क्योंकि पर साइज है. यहाँ 12 करोड़ 75 लाख अगर आप एक प्लेयर पे लगाना चाहते हो, तो मतलब क्लियर इंटेंशन दिख रहा है युवराज की शायद धोनी ने कुछ बोला है
कि इनको लेकर ही आना है, इसलिए ये प्राइस इतनी पहुंच रही है, अदरवाइज शायद ऐसा नहीं होता। 12 करोड़ 25 लाख। आई थिंक स्टिल पीछे से बोल के भेजा है, आना तो मैक्सवेल के साथ आना, वरना मत वरना आना। सीधा सीधा आई थिंक ये वर्डिक्ट आ चुका धोनी है को कॉल पीछे करा से। दिया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि लक्ष्मीपति बालाजी फोन पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो या तो स्टीवन फ्लेमिंग से बात कर रहे हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी से बात कर रहे हैं कि 12 करोड़ 50 लाख रुपए लग चुके हैं, और रुपए लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, बिकॉज कॉल्स आर गोइंग ऑन। हमने पहले भी सुना था युवराज की हो सकता है कि वर्चुअली अटेंड करें स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी। शायद महेंद्र सिंह धोनी से बात चलती भी, क्योंकि और वो बात कर रहे हैं, आई कैन सी इट राइट नाउ, 12 करोड़ 50 लाख। For Chennai, it's too much. I think it's way above what they should spend for Chennai. मेरे हिसाब से तो बैंगलोर के लिए भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लॉट्स 13 करोड़, इसको 13 करोड़ कर दीजिए आप, क्योंकि धोनी ने बोल दिया है 50 लाख और लगाए जाएं, और उनने भी लगा दिया 13 करोड़ 50 लाख। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये गाड़ी चलती जा रही है। हमें लगा था शायद ऑक्शन में इतना मजा नहीं आएगा, मिनी ऑक्शन है, पर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ इनको लेने के बाद दोनों टीम करने वाली हैं आराम। बेस प्राइस था 2 करोड़ जो जुड़े हैं हमारे साथ अभी, और ये पहुंच चुके हैं 13 करोड़ 25 लाख पे। दिस आप इज ह्यूज। आप सोचिए हमारा रिएक्शन ये है, तो मैक्सवेल का रिएक्शन क्या होगा? मुझे नहीं लगता उनके अभी वो बैठे तो बिल्कुल नहीं होंगे। चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, 13 करोड़ इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी। एंड आई थिंक दिस टाइम अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ 25 लाख और जोड़ दीजिए, 13 करोड़ 50 लाख हो चुका है अब। ये रुकने का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्लियर टॉक्स इन चेन्नई कैंप। वी वांट समबडी लाइक ग्लेन मैक्सवेल इन आवर टीम, दैट्स फॉर श्योर। जो टेंशन है वो चेन्नई कैंप से अब मूव हो गई है बैंगलोर कैंप में, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि और पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग युवराज, बिकॉज अगर आप इनको खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप करेंगे क्या पूरे ऑक्शन में? चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे? अच्छा, 25 लाख रुपए और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये गाड़ी नहीं रुक रही है। बैंगलोर is also very firm. It's Virat Kohli versus Mahendra Singh Dhoni now. It's not about Bangalore or Chennai at the moment. I think both captains are very sure that they are looking for somebody like Glenn Maxwell. 14 crores is the price, and this is a price which बेन स्टोक्स, अच्छा बेन स्टोक्स 14 करोड़ 50 लाख में बिके थे 2017 में। अगर कहीं 50 लाख और लग जाते हैं तो उनके बराबर आ जाएंगे। अगर कहीं 1.5 करोड़ रुपए और लग जाते हैं तो पैट कमिंस के बराबर आ जाएंगे, और कहीं उसमें 25 लाख और जुड़ गए तो आज तक का सबसे महंगा प्लेयर इंडियन T20 लीग में हो जाएगा। दिस इज ह्यूज। This is, I think this is, we haven't seen this so far. Again, mini auction, big money, and such big money. It's going over 14 crores. This is unbelievable, really. You it looks almost foolish to me. इतने पैसे, I think चेन्नई तो बिल्कुल ही ऑक्शन में सिर्फ पानी चाय कॉफी पिएगी, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है। Absolutely, because now I'm not understanding. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। 14 करोड़ 25 लाख। The ball is in Chennai's camp as of now. They are like कि अगर 25 लाख रुपए और लगा देते हैं तो जाएंगे कहां पे? बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको अपना स्क्वाड भी तो पूरा करना है। आप बिना स्क्वाड पूरा करे चलाएंगे कैसे? दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ले लिया है फाइनली। 14 करोड़ 25 लाख में बैंगलोर के लिए खेलने वाले हैं। जो सूत्रों के मुताबिक निकला था कि बैंगलोर के लिए खेलेंगे 2021 के इंडियन T20 लीग में, वो हो चुका है फाइनल। This was absolutely amazing. 14 crores 25 lakhs for Glenn Maxwell. Zero for both me and Yuvraj, but we enjoyed as if we are earning that amount. Yuvraj, it was amazing. 14 crore 25 lakhs, nothing better. Nothing better for Glenn Maxwell, I think, and performing before the IPL with such consistency has held him in good stead for the future. और ये future आ चुका है उनका। 14 करोड़ 25 लाख। पंजाब ने 10+ करोड़ का खरीदा था, 14+ करोड़ यहाँ पे, 26,000 यहाँ मिल गए हैं। GST टैक्स जो मर्जी काट लें आप, फिर भी 20 करोड़ से ऊपर घर लेके जा रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल 2 सीजन में।
what a life. I think you if Absolutely. he didn't score 1 6. He didn't hit 1 6 in the last season, and after that 14 प्लस कर दें आप, उतने करोड़ में Three. बिके हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये तो अब केदार जाधव 2 करोड़ बेस प्राइस, आई थिंक he himself would have been surprised why did I put my base price as 2 करोड़। बहुत बहुत बिस्मल सीजन था, एंड नॉट सरप्राइजिंग दैट एब्सोल्युटली केदार जाधव जाधव। नहीं को बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। पर अगर ये जो प्लेयर है अभी स्क्रीन पे अगर ये नहीं बिका तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। और इनका नाम है शाकिब अल हसन। 2 करोड़ इनने अपनी बेस प्राइस रखी है। युवराज, इनको बिकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता के लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, हैदराबाद के लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा रहेंगी। मैं चाहूंगा कि इनको जरूर लिया जाए और कोई अगर टीम लेती है तो इट विल बी वन hell of a turnaround for him. I think that the teams should be looking for him. Again, Chennai should be looking for him. अगर सस्ते में मिल जाता है, इतना इन पे bid ना करें. But it seems like he will go unsold. The kind of display has been put up so far. This is a bit surprising because one of the best all-rounders in the world. Whichever rankings you pick, any format you pick, Shakib Al Hasan is up there. 1, 2, 3 में, टॉप 3 में तो हर रैंकिंग्स में ऑलराउंडर की रहते ही हैं, और ऐसा प्लेयर हाथ नहीं चालू हो गया है, बिडिंग चालू हो गई, 2 करोड़ 20 लाख पे आ गए हैं। आई थिंक यू वुड बी अ हैप्पी कैंप बिकॉज सबसे पहले जिनने बिडिंग उठाई है वो है पंजाब। तो मतलब पंजाब इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड। उनके साथ में कोलकाता भी जुड़ चुकी है। 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 40 लाख पे आ चुके हैं। कॉन्वर्सेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन वेदर वी शुड हैव हिम और नॉट। 2 करोड़ 40 लाख मतलब इस साल के इंडियन T20 लीग 2021 के सीजन में जरूर खेलेंगे। किसके लिए खेलेंगे वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, पर खेल रहे हैं दैट्स फॉर श्योर। आई थिंक शाकिब अल हसन विल बी अ वेरी गुड पिक। अगर इतने 3-4 करोड़ में भी मिल जाता है, पंजाब को तो 5-7-8 करोड़ में भी मिल जाता है, इट वुड बी अमेजिंग फॉर देम, बिकॉज equal with bat and ball. Very few players in the world, can perform so well with bat and ball in hand. गेंदबाजी में तो शाकिब अल हसन is one of the best, I think. और बैटिंग में भी आपके लिए 5वें 6 नंबर पे आराम से बल्लेबाजी कर सकते हैं early on in the innings. शाकिब अल हसन will be a really good pick. They need an experienced player in the middle order. Shakib Al Hasan could be that guiding factor, that light for them, who could guide the youngsters in the middle order. Mandeep Singh, Sarfaraz Khan, Prabh Simran Singh, they're not sufficient players to guide you to wins. Shakib Al Hasan could be a match winner for you. T20 is about match winners. Short span of time में ये कर सकते हैं शकीब अल हसन आपके लिए। युवराज, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इनने करीबन करीबन 1.5 से 2 मिनट का डिस्कशन करा है कि हमें और बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज अगर उनके रिमेनिंग पर्स का बैलेंस देखा जाए तो वो 53 करोड़ 20 लाख रुपए है। और आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको मैच विनर्स चाहिए जो आपकी टीम को जिता सकें। इतनी कॉन्वर्सेशन करना जब कोई प्लेयर 2 करोड़ 40 पे ही है, मेरे हिसाब से आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है कि दूसरी टीम्स का क्या लेवल हो चुका है, आपको उसी के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। 3 करोड़ 20 लाख जरूर पहुंच चुका है, पर इतनी कॉन्वर्सेशन अगर स्टार्टिंग में होंगी तो कहीं अगर प्राइस 5 करोड़ के ऊपर निकल गई तो ये शायद उठाएंगे भी नहीं। Punjab is looking tentative, I think. For a player of Shakib Al Hasan's class, they shouldn't be this tentative. But I think good minds there out in the camp. अनिल कुंबले खुद स्पिनर हैं, तो वो बता सकते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से शाकिब अल हसन पिक करने चाहिए या नहीं. Lots and lots of money available for Punjab. They should be looking to go for Shakib Al Hasan according to me. KKR भी जा रही है. KKR को इतने प्लेयर्स की जरूरत नहीं है मिडिल ऑर्डर में, अगर आप देखें. Until they're looking for someone to replace Sunil Narayan, which I think they are. I don't know why I get the feeling, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के लिए भी बिड करा था और शाकिब के लिए भी. बट समथिंग व्हिच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज आप खिलाओगे कहां पे? मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वहीं पे निकल के आ रहा है कि आप ले चाहे कितने प्लेयर्स को ले लो, पर आपको मैं इनका स्क्वाड बताना चाहूंगा। ओवेन मॉर्गन इनके कप्तान, आंद्रे रसल उनके बाद, दिनेश कार्तिक, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्गसन, नीतीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, उनके अलावा रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरीन, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी और 2 प्लेयर और जुड़ चुके हैं। अगर इनके ओवरसीज देखे जाएं तो इनके पास पहले ही इतने ओवरसीज हैं
कि 2-3 और ओवरसीज लेने का मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। 4 से ज्यादा आप खिला नहीं सकते। ओवेन मॉर्गन को आप सारे गेम्स खिलाओगे ही खिलाओगे, उसके अलावा आप आंद्रे रसेल को खिलाना ही चाहोगे सारे गेम्स, कहां खिलाओगे आप? जी पता नहीं, बाहरी नेट्स में खेलेंगे अब, ऐसा लग रहा है नेट्स में ही जगह या बनेगी ऐड शाकिब। नहीं ले रहे? जी ऐड के लिए भी हो सकता है, जैसे क्रिस गेल को हम मानते हैं मार्केटिंग पावर है, वैसे ही शाकिब अल हसन को बांग्लादेश क्रिकेट के लिए शायद ले लिया है। मोइन अली is out there, finally someone has bid for him. I was looking the kind of power Moeen Ali possesses. Again, he could be a specialist T20 player. बॉलिंग में दिक्कत है, पिटाई हो सकती है, क्योंकि अब हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में भी देखा, वेरिएशन नहीं है बॉलिंग में, बिल्कुल भी एंगल चेंज नहीं करते हैं, बस हाई आर्म से फेंकते रहते हैं, ऑफ स्पिन फेंकते रहते हैं, ना दूसरी तरफ जाती है, आर्म बॉल इनके पास है नहीं। इनकी गेंदबाजी है which has let him down in T20 cricket, but still a very very good player. बैटिंग में जो जो काइंड ऑफ क्वालिटी और पावर है, टीम्स शुड बी लुकिंग फॉर हिम। Well, absolutely, because अगर मोइन अली को बिक रहे हैं तो दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई हैं। यहीं पे आता है सारा लक का जो खेल है। आपका पॉट जरूर सेकंड है, पर सेकंड में कौन सा प्लेयर उस पॉट से निकल के आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो मोइन अली पहले निकले हैं एज कंपेयर टू डेविड मलन एंड क्रिस मॉरिस। तो अब डेविड मलान जैसे प्लेयर के चांसेस बिकने के कम हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर ऑक्शन एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर। 3 crore 40 lakhs already for somebody like Moeen Ali. Then are we looking for somebody as classy as David Malan in Indian T20 league season? That's the big question, Yuvraj. जी बिल्कुल, ये भी काफी बड़ा फैक्टर, यू मेंशनड इट राइटली। जो प्लेयर्स पहले आते हैं उनका यूफोरिया, उनके लिए यूफोरिया ज्यादा होता है कि हमें जल्दी से स्लॉट्स फिल करने हैं, हम पहले देख लेते हैं प्लेयर जो हमें चाहिए। अब जो एंड में प्लेयर आएंगे तब तक एनर्जी भी डाउन हो चुकी होगी हाथ खड़े करने की, टीम कॉम्बिनेशंस भी कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ऑक्शन शुरू होने से पहले द टीम्स वुड हैव आइड प्लेयर्स ऑलरेडी। उन्होंने लिस्ट जरूर बना रखी होगी, एयर मार्क कर रखे होंगे कि ये प्लेयर्स पे हमें बिड करना है। बट अगर उससे पहले स्लॉट्स फिल हो जाते हैं और प्लेयर बाद में आता है, जैसे डेविड मलान की बात करें, तो दिक्कत वाली बात है। मोइन अली की बिड ऊपर जाती हुई, विच इज अ गुड साइन आई थिंक। जो उन्होंने 43 मार दिया 18 गेंदों में, वहां पे शायद थोड़ा सोच बदल हो गई। 43 in 18 deliveries. And the second thing that we have to see here is the players who were not performing in Indian T20 League 2020 season are getting sold in Indian T20 League 2021 season. You see somebody like Steve Smith, he did not perform in 2020 season. Somebody like Glenn Maxwell was all sorts in the 2020 season, and similar was the case with somebody like Moeen Ali as well. All three are being picked by the franchises, and that's where the picture actually comes into picture. ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मोइन अली के लिए आपने 5 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और ये शायद सारे मैच खेले भी नहीं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि श्योरिटी भी नहीं है कि इंडियन T20 लीग वालों ने बता दिए कि शायद इंग्लैंड के प्लेयर्स पूरे आईपीएल में अवेलेबल नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहते तब आप 5 करोड़ 25 लाख लगा चुके हो। उनसे बेटर पिक थे मेरे हिसाब से शाकिब अल हसन, जो श्योरिटी है कि पूरे सीजन में पूरे सीजन में अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि जब इंडिया में इंडियन T20 लीग होती है तो डोमेस्टिक यहाँ भी नहीं चलता है, बांग्लादेश में भी नहीं चलता है। तो आप शाकिब अल हसन को पिक करें, उनकी भी सीरीज उस वक्त होती नहीं है, तो शाकिब अल हसन बेटर ऑप्शन था मेरे हिसाब से। बॉलिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस, यू नीड अ मैच विनर इन योर साइड, एंड आई थिंक शाकिब अल हसन का दर्जा T20 क्रिकेट में थोड़ा ऊपर मोइन अली से। बट एज वी सी, ही इज नॉट अ बैड पिक। 550 से 575 और अब 6 करोड़ पे पहुंच चुके हैं मोइन अली। समझ के बिल्कुल पार। मुझे लग रहा है अब मुझे क्लियर इंटेंशन समझ में आ गया है चेन्नई का। चेन्नई को एक स्पिनर और जो बैटिंग कर सकता है वो चाहिए। एक प्रॉपर ऑलराउंडर इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ग्लेन मैक्सवेल के वो पैसा लगाने को रेडी थे, और सिमिलर थिंग दे आर डूइंग फॉर समबडी लाइक मोइन अली। 6 करोड़ 50 लाख is something Moeen Ali did not dream of. अभी इंडिया से गए हैं वापस, और मुझे लगता है इतने खुश होंगे कि फटाफट फ्लाइट पकड़ के वापस आना चाह रहे होंगे कि जल्दी आओ, पैसे दो और खिलाओ। जी बिल्कुल, इतना सारा पैसा एक सीजन में, मोइन अली विल बी वेरी, और अब आपने इतने पैसे लगाए हैं, आपको उन्हें खिलाना पड़ेगा।
आप बाहर नहीं बिठा सकते। पैट कमिंस को इतने पैसे मिले थे, वो सारे मैच खेले। उनाडकट को पहले सीजन में जब पैसे मिले थे तो उन्हें भी सारे मैच खिलाने पड़े। उनाडकट की तो चलिए बात ही अलग है, उनकी तो कितनी ही चर्चा कर लें हम कम है। मोइन अली पे अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं, आपको खिलाना पड़ेगा, आई थिंक दे विल प्ले हिम, बिकॉज आई सेड दे नीडेड वन पिंच हिटर नीचे, थोड़ा नीचे मिडिल ऑर्डर के थोड़ा नीचे। अब आप चौथे तीसरे नंबर तक तो आपके पास मयंक अग्रवाल है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपके पास दीपक हुड्डा है, आपके पास मनदीप सिंह है, आपके पास सरफराज खान है, करुण नायर आपने रिलीज कर दिया था, आपके पास निकोलास पुरान है। तो चौथे पे निकोलास पुरान, उसके बाद पांचवे या छठे पे आपके पास आ सकते हैं मोइन अली, विच इज अ वेरी गुड लाइनअप नाउ आई थिंक। लेकिन बॉलिंग में पिटाई होगी इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही सीधे साधे ऑफ स्पिनर, ही डजंट डू एनी वेरिएशंस, दैट इज अ प्रॉब्लम। सीधे साधे ऑफ स्पिनर भी 7 करोड़ पे आ चुके हैं, तो मुझे तो लग रहा है अब इस बार हरभजन सिंह का ही पत्ता कट सकता है, क्योंकि जो स्पिनर्स हैं उनको सारी टीम्स ली जा रही हैं। ग्लेन मैक्सवेल की इधर जगह बन गई, मोइन अली की कहीं बन गई, शाकिब अल हसन की कहीं बन गई। इंडिया के जो छोटे स्पिनर्स हैं वो पहले से स्क्वाड के अंदर हैं, और चेन्नई ने खरीद लिया है 7 करोड़ के अंदर मोइन अली को। नहीं सोचा होगा इतने बिकेंगे, पर मुझे लगता है काफी अच्छा स्क्वाड बन रहा है अगर चेन्नई की बात करी जाए। वापस से इंटेंट दिखता हुआ। पर एक चीज जो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है, मोइन अली कितने साल के हो चुके हैं? युवराज 33 साल के हो चुके हैं, 33 ईयर्स के मोइन अली हो चुके हैं। कितने साल वो आपको दे पाएंगे? क्या अभी भी चेन्नई 1 साल के हिसाब से ही प्लान कर रहा है, या अब चेन्नई आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहा है? दैट्स द बिग क्वेश्चन दैट महेंद्र सिंह धोनी लेड चेन्नई नीड्स टू आंसर। They've always had a knack for picking older players. Moin Ali 33 years old. Why they keep filling their slots with such old players? और अभी थप्पा को भी ले आए, अब मोइन अली को भी ले लिया, तो क्लियरली इन्हें प्लेयर ऐसा चाहिए था जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे वो मोइन अली हो। एक ऑफ स्पिनर बैट और बैट्समैन उन्हें चाहिए, स्पिनर और बैट्समैन चाहिए था, तो मोइन अली उन्होंने बैक कर लिया 7 करोड़ में। तो ग्लेन मैक्सवेल पे 14 करोड़ खरीद शेल आउट करने को तैयार थे, और मोइन अली पे 7 करोड़। सो इतने पैसे ना होने के बावजूद इतना बिड करना, अगेन अ बिट सरप्राइजिंग। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट थिंक शिवम दुबे will go to, they are actually, They are, and I'm not surprised because जिस फ्रेंचाइज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही इनके लिए जा रहे हैं, राजस्थान। इनका बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आता कौन से प्लेयर के लिए जाना चाहिए, जाते किसके लिए हैं। बिल्कुल फेल रहते हैं हर सीजन के अंदर, ऑक्शन के अंदर। क्या माइंडसेट के साथ में आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये शिवम दुबे के 90 लिए तो लाख हैदराबाद शिवम का, दुबे के लिए तो मतलब चेरी ऑन द केक है सर, कि उनको मौका मिल रहा है और 1 करोड़ 30 लाख पे पहुंच चुके हैं, और बिडिंग लगातार चलती हुई। जुबिन बरूचा बैठे हैं टीम के साथ में, रंजीत बा ठाकुर बैठे हुए हैं, जेक बैठे हुए हैं, तो सारे जने डिस्कशन तो लगातार चल रहा है। वीवीएस लक्ष्मण हैदराबाद की तरफ से बिल्कुल बताते हुए कि हमें प्लेयर चाहिए। शायद इंडियन ऑलराउंडर इज व्हाट टीम्स आर टारगेटिंग, बट विल ही बी दैट इफेक्टिव is the question. the bidder is not coming down for both teams. They're just going all in for him. This is now really surprising. I don't think Shivam Dube would have been expecting 5 करोड़ पिछले सीजन, फिर इतना पैसा इस सीजन। शिवम दुबे और उनकी फैमिली तो उछल रही होगी इस वक्त, उछल रही होगी, और इनका काम आने वाले सीजन्स के लिए भी हो चुका है। आप ये देखिए, 50 लाख इनने अपनी बेस प्राइस रखी थी, उससे साफ समझ में आता है कि इनको भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि शायद मैं ना बिकूं, पर ये बिके और बिक रहे हैं बहुत ही भारी रकम पे। 50 लाख से 60 लाख, 60 से 70, 80, 90, 1 करोड़, और अब 3 करोड़ 20 लाख पे पहुंच चुके हैं। जो बिडिंग है वो कंटिन्यूसली चले जा रही है। समझ में नहीं आ रहा हैदराबाद का क्या माइंडसेट है इनके लेके, और राजस्थान क्या करना चाहता है। एब्सोल्युटली ऑल गन्स इज व्हाट हैदराबाद इज आउट। हैदराबाद इज आउट, एंड ये मेरे को लगता है ये दिक्कत हो गई राजस्थान के लिए, क्योंकि नहीं लेना चाहिए था मेरे हिसाब से शिवम दुबे जैसे प्लेयर को। मेरे इंटेंशंस आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, पर नहीं लेना चाहिए था। 3 करोड़ 60 लाख के अंदर अब हंस रही है हैदराबाद, हंस रही है कि शायद हमने 3 करोड़ 60 लाख रुपए किसी के गवा दिए। पर इंटेंशन बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इवन जो अगर आप राजस्थान का कैंप देखें तो बिल्कुल मायूसियत है कि हमने कहीं ज्यादा रुपए तो नहीं लगा दिए, क्योंकि 3 करोड़ 80 लाख और उसको चेंज करके आप 4 करोड़ कर दीजिए।
मतलब Another team has confusion entered था। the bid, which is the second team that has entered Vedant, Rajasthan के अलावा. Delhi it is, I think. Delhi has. दिल्ली है, दिल्ली के साथ के अंदर राजस्थान का बिड चलता हुआ 4 करोड़ 40 लाख। सब बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं, आप देखें सब बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। वो एक 50 लाख वाले प्लेयर को उन्होंने 4 करोड़ 40 लाख का बना दिया है। इतने शायद सबको पता है कि उनका पर्स खाली करवाना पड़ेगा अगर बड़े प्लेयर्स आए उससे पहले। 4 करोड़ 40 lakhs is what Rajasthan has given for somebody like Shivam Dube. That's very surprising. Has been sold to Rajasthan. I think a lot will be expected out of him. अब आप देखिए राजस्थान के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। बेन स्टोक्स इतने महंगे प्लेयर उनके साथ जुड़े हुए हैं। जयदेव उनडकट अनदर बिग प्लेयर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Somebody like Shivam Dube, who had just kept his base price for 50 lakhs, have been sold for 4 crores 40 lakh rupees. Now the expectations rise from 1 to 10. And that's where the problem arises for a franchise like Rajasthan. Big question. चलो एक अच्छी चीज होती भी क्रिस मॉरिस को जाने खरीद रहे हैं. He's very smart. He is very smart. He's kept his base price at 75 lakhs. क्योंकि अगर आपको किसी टीम ने खरीदना होगा तो वो आपका प्राइस लेके जाएगी ऊपर. बिडिंग होगी अगर टीम्स को खरीदना होगा तो इससे अच्छा आप कम रखें बेस प्राइस. And there's no point of keeping your base price at 2 crores when a team won't like to go for you. और अगर आपको खरीदना ही होगा टीम ने तो आपका अगर बेस प्राइस 50 लाख भी होगा तब भी वो 2 करोड़ तक चला जाएगा. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी फ्रॉम क्रिस मॉरिस. 75 लाख से स्टार्ट करते हुए अगर कोई ना किसी ने खरीदना होगा तो आप 2 करोड़ तक वैसे ही पहुंच जाएंगे. और आई थिंक क्रिस मॉरिस पहुंचेंगे, महंगे बिकेंगे, because Chris Morris is one of the finest all-rounders in the world right now and not just in this league. And again, Delhi, they're going all in. This must be really, really exciting for Chris Morris himself. वो बिडर नीचे नहीं हो रहा है दोबारा. दिल्ली में आप देखिए 1 मिनट से कम में 75 लाख हैज टर्न टू 5 करोड़. 75 लाख से 1 मिनट पहले बिडिंग चालू हुई थी. मुंबई इज ऑल्सो गोइंग फॉर हिम. अगर मुंबई इनको ले लेती है तो मुझे लगता है कि इनको हराना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. 5 करोड़ 50 लाख. एंड जो फ्रेंचाइजेस इनके लिए जा रहे हैं उनका इंटेंशन क्लियर दिख रहा है कि हमें चाहिए. 6 करोड़ पे पहुंच चुके हैं. उम्मीदें नहीं थी. I was really surprised in the first place that Bangalore actually released him. So many wickets, so many runs with bat in hand last season. Such a fine display of batting and bowling. गेंदबाजी में तो इन्होंने इतना impress किया था. अपने best figures भी pick कर लिए थे. 4 for 23 in 4 overs. And after that, releasing him was a foolish decision. I think Chris Morris को बिल्कुल release नहीं करना चाहिए था. They will pay for this, I think, and other teams are going for him because he's such a special cricketer. So really not a surprise for him that Chris Morris की bid इतनी high जा रही है. I expect for such a class player to go with such high bids. Even he's a class fielder as well. All three departments of the game. He's such a fine cricketer. Almost excels in each one of them. He's not half and half. He's a proper bowler with bat in hand. He can be destructive any day of the week. And in field, I've rarely seen him drop catches. He's so agile. Chris Morris will be a good pick for any team that he goes to. Absolutely. चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, राजस्थान के लिए खेल चुके हैं, दिल्ली के लिए खेल चुके हैं और ऑफ कोर्स इस साल किन के लिए खेलेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. क्रिस मॉरिस बैंगलोर के लिए भी खेल चुके हैं. 9 करोड़ इनका प्राइस हो चुका है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. 9 crore so thoda, I think again on the higher side, but as we saw, if teams can go for Glenn Maxwell with such a high price, I think Chris Morris is of equal if not better quality. Field में देखें, Maxwell might be a better fielder, but I think Chris Morris brings more facets to the game. गेंदबाजी में I think one of the best death bowlers in the world. I really like Chris Morris. और इतने lanky fellow होने के बावजूद भी गेंद बल्लेबाजी में इतने destructive. So Chris Morris, I'm really not surprised that teams are going this high for Chris Morris, and they are still going. Delhi don't seem to stop at the moment. What I am very surprised about is Bangalore is in contention. 10 करोड़ प्राइस पहुंच चुका है और अगर ये कहीं बैंगलोर के पास में जाता है तो स्लॉट बन कहां पे रहा है. आप ये देखिए, अगर आपको इनको
रखना ही था तो रिलीज करा क्यों? मेरे को आप ये बताइए कि अगर आपको रखना ही था तो आपने रिलीज करा क्यों, और आपने रिलीज कर दिया तो आप इतने लगा क्यों रहे हैं? 10 करोड़ पहुंच चुका है प्राइस. And Kolkata are out. Why are Kolkata bidding for him? So there's so many players in their side. It's really are not understandable, not fathomable. I think he's going to go to Delhi. Bangalore आएगी नहीं बीच में क्योंकि Rajasthan is opened 10 crores 75 lakhs and Rajasthan has opened. They also want to bid. Things are turning around. Things are turning around in this season, in this auction 2021. Things which you don't expect are happening. Things that you expect are not happening. We expected Alex Hales, somebody like Jason Roy, Karan Nair to be picked, but they are unsold. And if you see somebody like Chris Morris, who kept his base price at just 75 lakhs, is now over 11 crores. I told you it was a smart strategy. काफी स्मार्ट थी क्योंकि जब आप 2 करोड़ पे रखते हैं अपना बेस प्राइस तो थोड़ा डॉन्टिंग हो जाता है कि ये तो महंगा लग रहा है प्लेयर, लेकिन 75 लाख पे जब होता है वो दिखने में सस्ता लगता है, लेकिन अब आप 11 करोड़ पे लेके जा चुके हैं, तो अगर आपका बेस, अगर टीम को खरीदना है तो वो ऊपर जाएगा ही प्राइस, चाहे बेस प्राइस कुछ भी हो. सो 11 करोड़ से ऊपर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि 15 करोड़ 50 लाख तो 15 करोड़ 50 लाख नहीं, सॉरी 15 करोड़ 35 लाख रुपए बचे हैं मुंबई के पास में. दे आर स्टिल इन दी कंटेंशन. 11 करोड़ 75 लाख पे लाके उनको खड़ा कर दिया है, तो मतलब इसके बाद तो कोई प्राइस खरीद नहीं पाएंगे. 12 करोड़ में पहुंच चुके हैं. 12 करोड़ फॉर क्रिस मॉरिस. He did not expect that coming. We did not expect that coming. I think no journalist, no anchor, no reporter, no ex-cricketer would have expected something like this. 12 crore 50 lakhs is what Rajasthan and Mumbai, they are still in the contention. 12 crore 75 lakhs for Chris Morris. This is just going on and on. The discussions are going around कि अगर हम इनको ले लेते हैं तो फिर आगे के अंदर सिर्फ चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, क्योंकि this is just going on and on. 15 crores 35 lakhs, the remaining purse amount for Mumbai. Can they spend so much on a player? That's the big question. Rajasthan, they have 37.8 CR. They've already bought a big player like Shivam Dubey for 4 crores 40 lakhs. Can they buy him as well? 13.5 CR is the amount. Can he go over Glenn Maxwell? That's the only question which has remained unanswered right now. I think Mumbai are just looking to shell out their purse. They are just looking to spend everything they have. They want to go home. Of course, why would Mumbai like to spend money? Considering their owners, they'd go for everything if they had it in them. Coulter Nile was released by Mumbai, if I'm not wrong. Yeah. Perfect replacement for him, I think. Even if it now you have to play him in after giving. I really don't know, because Mumbai, the owners, they could buy every player in the world and still not play them. Mumbai going for them is a bit surprising. I thought Mumbai won't be that active. Rajasthan might need him, but 13 crores plus is a lot, I think. I really thought Punjab would go for him, but oh my God, there seems to be another twist in this, because Punjab has now bid for somebody like Chris Morris. 13 crores 75 lakhs is the amount, and Preeti Zinta is like, I want Chris Morris. They're still going for him. They've bid twice. Chris Morris, I really thought Punjab would go for Chris Morris. These 2-3 players, Chris Morris, Shakib Al Hasan, Moeen Ali, David Malan, Alex Hales. I don't know why Alex Hales wasn't bought by any team. Chris Morris, I think Punjab should go for him. Even if they want to shell out 14 plus crores, they should be going for him. They're still going for him. They are 14 crores. It is now. It's basically Yuvraj versus Vedant right now, because Rajasthan versus Punjab, 14.25 CR, equal to Glenn Maxwell. One more bid and he will become the highest bidder as of now for the franchise. 14 crore 50 CR. Ladies and gentlemen, it's Chris Morris. Abhi tak ka most expensive foreign player, most expensive player in IPL auction 2021.
15.5 CR के अगर ऊपर निकल जाते हैं तो he will become the most expensive player ever in the history of Indian T20 League. Ladies and gentlemen, it's 14.75, 14 करोड़ 75 लाख रुपए पे आ चुके हैं. Both the teams are going all out for somebody like Chris Morris. 14.75 CR for. Ladies and gentlemen, the talks are still going around. Preeti Zinta is making some calls. Anil Kumble is still out there, and they are just discussing whether we want him or not. 15 CR is what Chris Morris is right now. Oh my God, I think we are seeing something iconic, something which even Chris Morris, his family, South Africa cricket, nobody would have expected him to go at that price. 15 CR. Ladies and gentlemen, that's a lot for any player. 75 lakhs is what they started. Ranjit Thakur, again, the price is up 15 crores, 25 lakhs. Wow. Can he match Pat Cummins? That's the only question I have in mind right now. Can he match Pat Cummins? Can he go? Yes, he has matched Pat Cummins, 15.5 CR, one more bid, and he will become the most expensive player in the history of IPL. Can that happen? Zubin Barucha in talks with Ranjit Thakur and Jake, who is the Chief Operating Officer of Rajasthan. Are they doing this? Yes, this has happened. 15.75 CR. Ladies and gentlemen, Chris Morris has become the most important, most expensive player as well in the history of IPL. Oh, how the In fortunes the change. history of IPL, we are witnessing something very special. I think he will be the talk around the post shows. He will be talk around everything. What is happening, Yuvraj? From 75 lakhs to 15 crore 75 lakhs. This is how fortunes change. This is how tables turn. Chris Morris would be jumping around in his room wherever he is, whether he's playing, whatever he's doing. His eyes would be only one place, and that is the TV or his phone. One place only. That is the auction. 15 crore 75 lakhs. I think it's right now with Punjab, if I'm not wrong. And I think it's with somebody. I think it's with Rajasthan. I think it's with Rajasthan. Both teams. It's 16 CR. It's 16 crores. 75 lakhs is where it all started. And now it's 16 CR. Ladies and gentlemen, will he be able to play the Indian T20 League when he will step onto the field? 2 crore rupees per week is what he will be earning. More than 2 crore rupees per week. Can you imagine how much he will be earning per day when he will be playing Indian T20 League 2021 season? If Punjab don't qualify for the playoffs, it's 1 crore plus per game. That is how it's. If you wanted to put things in perspective, Yuvraj, we will be discussing that, but they are not stopping as of now. 16.25. 16 crores, 25 lakhs. Oh my God, this seems to be something unreal. Unreal, surreal, unreal, whatever you'd like to call it. But Chris Morris, we knew that he has the potential to bag some money at the auction, but 16 crores plus, I don't think any player would have expected this, let alone Chris Morris, whether it's Glenn Maxwell, even Chris Gale. I don't know if AB de Villiers went in the auction, teams would go for 16 crore plus. I think they would, but still it's going to that range. Most expensive player in the history of the auctions. We didn't think it would be Chris Morris, but it is. It might look like that it's AB de Villiers who's gone into the auction, but it's not. Let me tell you, it's Chris Morris who's out there. Punjab Kings and Rajasthan right now fighting it out for Chris Morris. They're going all in. I think Punjab have lots and lots of money, but shelling out 16 crore on a player, is that wise? That's the question. Absolutely, because we have seen how people perform when they get so much money. 16 crores is what Yuvraj Singh got a few seasons back. 16.25 crore, that means highest ever, be it foreign cricketer, be it Indian cricketer. It's in the history of Indian T20 League. We are talking about very, very special thing. He has finally been bought at 16.25. One to remember, will he be able to perform in 2021 season? That's the question
They all have to answer. Vedant, let's go back and see what the most expensive players have done. Yuvraj Singh, when he was bought for that amount of 14 crores plus, didn't do much, almost did nothing. Ben Stokes was a flop show after that 14.5 crores. Jaydev Unadkat, most expensive Indian player, 11.5 crores. Next season, an absolute flop show. Nothing went right for him. KC Karyappa bought for 8 crore, did nothing. Glenn Maxwell, 10 crores, 9 crores, has absolutely done nothing. I think KL Rahul is the only player I can remember who's done fabulously after being sold for a big amount. Only one player. And 16 crores, now the weight of expectations is too much. 1 crore per match, more than 1 crore per match. Just step out there for 40 overs. You earned 1 crore with that. 1 crore rupees 1 is crore. what नहीं 1 करोड़ से ज्यादा रुपए हर मैच में कमाने वाले हैं क्रिस मॉरिस. वो भी तब अगर सारे मैचेस खिलाते हैं. कहीं अगर इंजरी हो गई तो आराम से बैठ के 16 करोड़ 25 लाख रुपए कमाने वाले. That's too much. But I am glad that somebody like David Malan, I think nobody is going for David Malan, and he has went unsold. No, he has went sold. Yes, Punjab has bought David Malan at the brace price, 1.5 CR. I think they would be very, very happy, Yuvraj. Something went right for them. Just imagine, last bid, they let go a player at 16 crore, and now they've bought a player at the base price of 1.5 crore. Again, a good strategy that his base price wasn't. I'm sure if his base price would have been 2 crores, no team would have bid for him. But 1.5 crore was a little less, and that's why he's been bought. Now the problem, David Malan will have to play at number 4. Don't think that's much of a problem because he can be that flexible. Mayank Agarwal at 3, David Malan at 4, Nicholas Puran at 5, maybe Moeen Ali at 6 if you can play. I think Moeen Ali won't get a spot if David Malan plays. Well, absolutely. I totally agree to you. The first session of Indian T20 League 2021 season has been done and dusted. Chris Morris at 16.25 and of course Glenn Maxwell 14.25 CR. It is just going on and on. And ladies and gentlemen, we will be joining you guys back. Set 1 and 2 are done and dusted. Aaron Finch, Alex Hales, Evan Lewis, Karan Nair, Jason Roy, Hanuma Vihari went unsold from set 1, and only it was Steve Smith who was able to back some prize. And of course, Shakib Al Hasan, Moeen Ali, Shivam Dubey, David Malan, Glenn Maxwell, and Chris Morris were bought from the set 2. Only player who missed out from the list was Kedar Jadhav. So one list, only one player was bought. Second player, only one player left out. So very, very interesting. It will be interesting to see so many sets still remaining. I have the documents right in front of me. We'll be joining you guys back, a small break, and we'll be joining you guys back and discuss as what can happen in the times to come.